Hello friends, welcome to yet another wonderful episode of Singhania Quest Plus Ed Talks. This is a series where we get some of the top educators in country to talk about the education system of India, how they are solving major problems and how education is going to look like in the future. Today we have one of the top educators of the country with us for this wonderful series. He is someone who has changed the face of early childhood education in India. The kind of initiatives that he has taken, the kind of systems that he follows in his school has given him the kind of unprecedented success with 250 plus schools in a very short span time. This is a wonderful achievement and indeed we are lucky, as I told you a short while back, to have Mr. S.K. Rathore with us. He is the founder, chairman and managing director of Sanford Group of Schools. A very warm welcome to you, sir. Thank you for taking time out and coming to this show, sir. Thank you. We are really grateful to you. Thank you so much, Brijesh, for inviting me. थैंक यू। सो सर, हमारी ये जो सीरीज़ है एजुकेशन के बारे में है, जहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि बड़े बड़े एजुकेटर्स क्या सोचते हैं, एजुकेशन को कैसे देखते हैं। सो बिफोर आई मूव टू माय क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी कैसे रही एजुकेशन में। व्हेन डिड यू स्टार्ट, हाउ डिफिकल्ट वाज इट एंड हाउ वाज द होल जर्नी? आवर होल ऑडियंस वुड लव टू नो दैट, सर। So, Brijesh, we started our first प्री स्कूल more than 2 decades back. Year 2000 में हमने पहला प्ले स्कूल शुरू किया. And that point of time, people were not so much aware about the preschool education, and people don't want to even send their children for the preschooling. Right. So it was very difficult time to make the people educate. Why should they send their child for early childhood education, and what is the importance of it? And it was really a very tough time for initial 1 years, because we had to knock every door to make the people understand why should they send their child to the preschool. Then we invented lots of new activities for the children, because 21 साल पहले उतना सब कुछ जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर अलग अलग कंपनीज जो आते हैं हम लोगों के पास में, कुछ नहीं था उस टाइम पर। तो हमने बहुत सारे रोल प्ले मॉडल्स डिज़ाइन किए, स्कूल को इतना अट्रैक्टिव बनाया कि बच्चे जब आते थे वहाँ पर तो वहाँ से जाने का नाम नहीं लेते थे। और हमने एक और काम किया, क्योंकि इनिशियली देयर वाज चैलेंज टू गेट द एडमिशंस, तो हमने आफ्टरनून में स्कूल को पूरे RW के बच्चों के लिए खोल दिया कि पेरेंट्स shall send their children to our school to play with the concept what we have created there. तो that was the game changing initiative कि जो पेरेंट्स को लगा कि ये स्कूल एक अलग टाइप की चीजें लेकर आया है कि बच्चे जब जाते हैं शाम को खेलने के लिए तो घर आने का मन नहीं करता उनका। Brilliant. तो हमने वो सब किया और उससे ये हुआ कि अगले 1 साल में, फर्स्ट ईयर वाज वेरी टफ, अगले 1 साल में हम ब्रेक इवन पर पहुंच पाए। तो फिर उसके बाद कोई पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता पड़ी नहीं। सो दिस इज हाउ द जर्नी ऑफ सैनफोर्ड फ्रेंचाइज बिजनेस स्टार्टेड। राइट, ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। वाज़न्ट दैट वेरी इंस्पिरेशनल? From one small preschool, allowing children to come there, play with them, the whole RW had access to that. Brilliant, I mean, so very inspirational. So sir, आपने एंड में भी फ्रेंचाइजी की बात की, that was very inspirational, because एक स्कूल चलाना I can understand is a little simpler, लेकिन 250 स्कूल तक पहुंचना and most importantly पहुंचने के बाद उनको मैनेज करना, how did you develop this system of reaching out to 250 schools and then managing them with such wonderful quality all across India, sir? How did that happen? See, running your own school is very simple, because you have all the system developed, you know what to do, what not to do. Right. But giving franchise is also not so tough, because there are many people in the market who are looking for new businesses to invest in. Absolutely. But managing people is very difficult. Yes. Because I am managing director of my own school, my company. And if you are taking franchisee of mine, then you are managing director of your own school. Absolutely, sir. So, as you know, promoter of the brand, I have to manage all the managing directors of 250 schools of mine. Right. So, this is very difficult, because many of the times the ego comes in between. Absolutely. So, it's very difficult. But in franchise model, what I have learned in last, 2 decades, you need to take different approach. Selection of the franchise is very important. Absolutely. Because this is the business where profit may not come immediately. Right. This is a long-term business. You need to find out the people who wanted to work for the children,
who wanted to create a difference in the society. Brilliant. So my dear friends, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आपको किसी MBA कॉलेज में भी सीखने नहीं मिलेगी, जो आपको एक्सपीरियंस सिखाएगा, जो सर ने अभी बात की, मैनेजमेंट, मैनेजिंग 250 पीपल with different experiences, with different backgrounds, with different expectations and managing them so well. Thank you so much for sharing that experience, sir. Sir, आपने अभी early childhood के बारे में बात की and I'm sure government of India is now very focused on early childhood because NEP में भी उन्होंने कहा है कि they want to bring back 2 crore children back into the education system. So that is why foundation, literacy और numeracy, ये 3 चीज़ों को गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है एंड दैट इज व्हाट आई एम श्योर स्कूल्स लाइक योर्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आप NEP को कैसे देखते हैं सर? ये इंडिया के प्री स्कूल सेक्टर को कैसे चेंज करेगी, प्लस हमारे एजुकेटर्स को क्या रोल होगा प्री स्कूल्स के बारे में, टीचर्स को क्या करना पड़ेगा आगे जाकर सर? Thank you so much, Brijesh, for asking such a beautiful question. See, early childhood education is very close to my heart because we have invested all 20 years of my young age into this field only. Agreed. So this is very close to my heart and actually what happened कि अभी तक before the NEP 2020 अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या प्री स्कूल में बच्चों को भेजना ये एक फैशन की बात होती थी. जो ऐसा कहा जाता था सोसाइटी में कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है इसलिए बच्चों को प्ले स्कूल में भेजते हैं, या जो एक थोड़ी एलीट और या सब एलीट क्लास थी जिनकी इनकम थोड़ी ज़्यादा होती थी वो अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेजते थे. लेकिन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ द कंट्री. आई एग्री विद यू. 2 से 6 साल तक के बच्चे में वो सारी हैबिट्स डेवलप हो जानी चाहिए जो कि वो लाइफ लॉन्ग रिटेन करता है अपने साथ में. आई रियली थैंक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आए वो लोग और इसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई. सो व्हाट पीपल लाइक अस जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में काम कर रहे हैं पिछले 2 डिकेड 3 डिकेड से, उनकी जो बात थी जो हम लोग किसी ना किसी फॉरम के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म से, चाहे हम कॉन्फ्रेंसेस में बोलते रहे हैं, कभी हम किसी मिनिस्टर से मिले तब जाकर बोल कर आए हैं, कभी किसी सेक्रेटरी से मिले एजुकेशन सेक्रेटरी से तब बोल कर आए हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन शुड बी मैंडेटरी पार्ट ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम. Absolutely. So NEP now has advocated every child has to go at the age of 3 years. 3 years. और अच्छी बात यह है कि जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 20 साल में डेवलप किए 21 साल में जी उनकी बात की गई है उसमें. एब्सोल्युटली वेरी प्रोग्रेसिव अप टू द ग्रेड 2 बच्चों को उन्हीं मेथड्स के साथ सिखाया जाएगा. पढ़ाने की बात नहीं की है, लर्निंग की बात की है वहां पर, है ना. तो लर्निंग शुड हैपन इन द नेचुरल वे विद द प्ले वे मेथोडोलॉजी, विद द कॉन्सेप्ट, विद द एक्टिविटीज, विद द वर्कशीट्स एंड ऑल दैट. एब्सोल्युटली. तो ये मतलब आई एम सो हैप्पी कि अब कोई भी बच्चा देश का अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से वंचित नहीं रहेगा. पहली बात. दूसरी बात, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स थे अभी तक, जो भी टीचर्स हमारे स्कूलों में होती हैं या जो भी प्ले स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स जो होती हैं उनकी कोई बहुत ही अच्छी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी. आई एम श्योर कि नाउ विद द NEP विद इन प्लेस एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम बनेगा जिसमें कि टीचर्स की ट्रेनिंग, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की बात की गई है उसमें, है ना. हर टीचर को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू जाना पड़ेगा और हर टीचर एजुकेटेड होगी हाउ टू इम्प्लीमेंट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन प्ले स्कूल्स. अभी तक क्या होता था कि हम लोग जैसे जो चेन चला रहे हैं प्ले स्कूल्स की, हमारा अपना एक इकोसिस्टम है, हम पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं हमारे. तो जो भी हमारे यहाँ आते हैं एज ए टीचर ज्वाइन करने के लिए या सेंटर हेड या कोऑर्डिनेटर के जॉब के लिए, उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा अटेंड करना होता है. बट पहले से हम चाहें कि ऑल ऑफ सडन हमें अगर 10 टीचर चाहिए अलग अलग स्कूल्स में तो हमें ट्रेन टीचर्स नहीं मिलती थी. बट आई एम श्योर कि नाउ विद द NEP इन प्लेस अब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह के बनेंगे जिससे कि हमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए प्ले स्कूल्स के लिए ट्रेन टीचर्स मिल पाएंगे. Absolutely. So brilliant answer, isn't it? A wonderful reform presented by the government of India. After 34 years, we are having a new policy. And as sir said, complete focus on early childhood education. In fact, अगर आप NEP डिटेल में स्टडी करेंगे, एक फाउंडेशनल ब्लॉक बना दिया गया है फ्रॉम नर्सरी, जूनियर KG, सीनियर KG, ग्रेड 1, ग्रेड 2, 5 सालों का, जहाँ पर बच्चों को एक्सटेंसिवली, जैसा सर ने कहा, इट इज़ मोर अबाउट लर्निंग rather than a rote philosophy kind of a thing. So it's a brilliant achievement. Teacher training formalize हो जाएगी and I'm sure early childhood को अपने deservedly अच्छी जगह मिल पाएगी अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, राइट. सर अभी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से एजुकेशन ग्रो हो रहा है,
बट लास्ट 2 years हैव बीन वेरी टफ फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? आई एम श्योर पेरेंट्स के लिए टफ थे, स्कूल्स के लिए टफ थे, टीचर्स के लिए टफ थे. तो लास्ट 2 साल को आप कैसे देखते हैं? आई एम श्योर देर आर मेनी नेगेटिव एस्पेक्ट्स, बट आई एम श्योर सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो. जैसे लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करना सीख गए. टेक्नोलॉजी के बिना हम स्कूल्स इनफैक्ट रातों रात बंद हो गए थे. बिना टेक्नोलॉजी आई डोंट थिंक हम स्कूल चला पाते, राइट? सो लास्ट 2 सालों को आपने कैसे देखा सर? इसमें से क्या अच्छी चीज़ उभर कर आई है बाहर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि 2 साल बहुत ही चैलेंजिंग थे, और सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय है वो छोटे बच्चों को लेकर था जी. कि जो प्ले स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे वो दे वर लॉक्ड इन द हाउसेस, राइट, और उनकी सोशलाइजेशन भी नहीं हो पा रहा था, और एजुकेशन तो आप छोड़ ही दीजिए. राइट. जितनी इन्फॉर्मेशन मैं रखता हूँ अक्रॉस द कंट्री, व्हेन द सिचुएशन अराइजेज लाइक दिस, के बच्चों को घर से बाहर जाना अलाउ नहीं था जी. तो कोई भी प्ले स्कूल या प्ले स्कूल टीचर टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे कि वो ऑनलाइन एजुकेशन दे सकें, या उनके पास कंटेंट नहीं था कुछ भी जी. लेकिन प्ले स्कूल की टीचर जो स्मार्ट बोर्ड भी चलाने में डरती थी, रातों रात वो टेक्नोलॉजी वॉरियर बन गए प्रैक्टिकली, है ना? उन्होंने मोबाइल पे ही क्लास लेनी शुरू कर दी. डेफिनेटली हम लोगों ने उनको ट्रेन किया. आप जैसे लोगों ने, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उन्होंने, आप लोगों ने हम जैसे स्कूल्स का साथ दिया और एक इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश की. रातों रात वो इकोसिस्टम डेवलप हुआ, और विद इन फ्यू डेज 6 अप्रैल को हमारा सेशन शुरू हो गया था जी. जिससे कि हमने 6 अप्रैल को अनाउंस किया था, और 6 अप्रैल को ही हमारा ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गई. तो ये टीचर्स, जो प्ले स्कूल की टीचर्स हैं, ये अगले 10 साल भी टेक्नोलॉजिकली उतनी अपग्रेड नहीं होने वाली थी अगर ये 2 साल ऐसा माहौल नहीं होता. तो ये बहुत अच्छी बात है कि टीचर्स को स्किल्स अपनी पहचानने में, उनको बाहर निकालने में, अपने आप को अपग्रेड करने का ये मौका मिला है. दूसरी बात क्या है कि पेरेंट्स जो केवल बुक लर्निंग की बात किया करते थे, पेरेंट्स जो फिजिकली स्कूल में बच्चा नहीं जा रहा है तो उनको लगता था स्कूल नहीं गया, फिजिकल स्कूलिंग का तो कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता. तो वी हैव फाउंड आउट द वे कि अभी स्कूलिंग बच्चे की नॉन स्टॉप चलती रहेगी, कुछ भी हो जाए. एब्सोल्युटली. तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आउट ऑफ दो नेगेटिविटी ये पॉजिटिव निकल के आया कि टीचर्स की स्किल अपग्रेडेशन मल्टीफोल्ड हो गया है, जो अगले 10 साल में नहीं होना था. सारे प्ले स्कूल टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड हो गए, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे. और उसके अलावा पेरेंट्स ने अडेप्ट कर लिया इस सिस्टम को कि हाँ, फर्स्ट ईयर में तो प्रॉब्लम थी, फर्स्ट ईयर में पेरेंट्स वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ऑनलाइन स्कूलिंग. बट सेकेंड ईयर, आई टेल यू what number we used to have in physical schooling, 60% number we retained. Wow. Second year. That's a great initiative. I tell you, Brijesh, कि अभी जब स्कूल फिजिकली खुले हैं तो all those parents are so happy कि आप लोगों ने हमारे बच्चे की एजुकेशन एट पार रखी. Absolutely. तो ये तभी संभव हो पाया जब टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया. बहुत सारी एप्स इस टाइम पर आई, आप लोगों से भी कनेक्ट बना, और पेरेंट्स ने उन सब चीजों को एक्सेप्ट किया. तो नाउ द होल इकोसिस्टम ऑफ इवन द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज टेक सेवी, राइट, टेक enabled. Perfect, brilliant. So my dear friends, isn't this a lesson for all of us? They say necessity is the mother of invention, and that is what we saw during the pandemic. I think I will take this interview as an opportunity to thank the whole teaching fraternity. One fine day an announcement was made that we are going into a lockdown. No schools will function from tomorrow, but teachers, by burning the midnight oil, learning various technologies, made sure that our children don't suffer. बच्चों के एजुकेशन में इतना सा भी डिफरेंस नहीं आने दिया उन्होंने, and they made sure कि हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें. ये ज़्यादा स्पेशल क्यों था? इमेजिन एक सर्जन सर्जरी कर रहा है और लोग उसे देख रहे हैं. वो हमारे टीचर्स के साथ हो रहा था. टीचर्स पढ़ा रहे हैं और पेरेंट्स उनको घर से देख रहे हैं और जज कर रहे हैं. एंड डिस्पाइट ऑफ दैट द टीचर्स हैव डन एन एक्सेलेंट जॉब. सो माय डियर टीचर्स, आई टेक दिस मोमेंट टू रिकॉग्नाइज दिस पर्टिकुलर थिंग एंड कांग्रेचुलेट यू. सर, यू स्पोक अ लॉट अबाउट टेक्नोलॉजी इन द प्रीवियस आंसर. आई लव दैट. अगले 10 साल में आप टेक्नोलॉजी का रोल कैसे देखते हैं? हाउ विल एजुकेशन इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी? सो as I was discussing with you only, right, at many of the forums, many of the webinars, I advocated online school board, right, and I believe like me, many other educators also advocated it, right. So I am so happy government of India has announced online school board also. तो अभी after this scenario, बहुत सारे पेरेंट्स ने ये भी समझ लिया, नंबर्स हो सकता है कम हो अभी, कि घर पे बैठ के भी बच्चे की अच्छी एजुकेशन हो सकती है जी. और उसमें क्या है कि देयर आर 2 kind of situation. One, where the रूरल एरिया
जी। अगर आज हम किसी भी गांव में जाते हैं, गांव में स्कूल अच्छे नहीं हैं आज भी, अग्री। इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत अच्छे स्कूल्स नहीं है, और वहाँ पर कुछ देयर इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल they wanted to spend money for the education of their children, but they don't have opportunity. Absolutely. तो ऑनलाइन स्कूलिंग के थ्रू मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में, अभी मैं हाइपोथेटिकल हो सकता है बात कर रहा हूँ, आगे आने वाले समय में हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर तालुका में, हर गांव में ऐसे सेंटर्स बनने वाले हैं जो कि दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में बैठ के टीचर्स क्लास लेंगे, और वहाँ पे एक फैसिलिटेटर होगा जो वहाँ पर केवल उन बच्चों को ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा। जी। जो आपका टेक्नोलॉजिकल सेटअप है या और भी बहुत सारी ऐप मैंने देखी हैं, उसमें बिल्कुल जो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी और 3D मॉडल्स और 3D क्लासरूम्स बना के जो आप लोग कर रहे हैं, फर्क कहाँ रह गया है? फिजिकल क्लासरूम में और वर्चुअल क्लासरूम में मुझे तो बिल्कुल फर्क नजर नहीं आ रहा आज की डेट में। तो आने वाले समय में जो बच्चे सिटीज में नहीं है और अच्छी एजुकेशन एक्सेस नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव गुड स्कूल इन देयर नेबरहुड, जी हाँ, तो वो वहाँ पर ये इस मोड से ऑनलाइन एजुकेशन बोर्ड अब बन गया है। Absolutely. बच्चे को 10th का एग्जाम देना है, 12th का एग्जाम देना है, वो एग्जाम भी दे सकता है और उसकी क्लासेस इस मोड से हो सकती है। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू चेंज द मीनिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन। Absolutely, that was brilliant, and see, this is called vision. Sir has laid out a wonderful vision in front of all of us that yes, in a few years from now there will be online schools and there will be facilitators. So teachers basically एक guide का काम करेंगे. Rather than being a sage on the stage, there will be a guide by the side, if I am not wrong, right? That was a wonderful answer, and thank you for that particular vision that you laid out, sir. Now moving to my next question, sir. We have spoken about the teachers quite a lot. We have spoken about the students quite a lot. Parents ने भी काफ़ी सफ़र किया है पिछले 2 सालों में, you know, with relation to their work, with relation to some of them losing their near and dear ones. So parents को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर थ्रू दिस पर्टिकुलर फोरम? बिकॉज स्पेशली जब हम प्री स्कूल की बात करते हैं, मैंने देखा है कि कुछ बच्चे 2 साल बाद पहली बार स्कूल आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेड 1, जूनियर केजी, सीनियर केजी में कभी स्कूल देखी ही नहीं है, पहली बार फर्स्ट स्टैंडर्ड में डायरेक्ट स्कूल आ रहे हैं। उन पेरेंट्स को अभी क्या करना चाहिए इन बच्चों को, ताकि बच्चे धीरे धीरे सोशल सिस्टम में वापस आ सके? पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरे देश के पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा, बिकॉज वॉट एवर आवर टीचर आर डूइंग ऑनलाइन, दे आर गेटिंग हेल्प ऑफ द पेरेंट्स ओनली। एब्सोल्युटली, क्योंकि खाली लेक्चर नहीं देना था छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों को एक्टिविटीज करानी थी। तो सबसे पहले तो बच्चे को सुबह जो भी क्लास का टाइम होता था उस टाइम पर उस बच्चे को तैयार करके मदर फादर ने बिठाना कंप्यूटर या मोबाइल के सामने, और उसके बाद जो भी एक्टिविटीज टीचर प्लान करके दे रही थी वो उन बच्चों को क्लास के बाद में करवाना। तो बेसिकली इन दिस केस जो मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन एजुकेशन बोर्ड का कि फैसिलिटेटर, तो पेरेंट्स वर फैसिलिटेटर इन दैट केस। मतलब आई हैव सीन फर्स्ट टाइम पेरेंट्स कम सो क्लोज टू टीचर्स। आने वाले टाइम में मैं जो देख रहा हूँ पेरेंट्स का रोल, अभी क्या है देखो, सब लोग बिजी होते जा रहे हैं, है ना। यंग पेरेंट लाइक यू आर बिजी, आई कैन सी यू ट्रैवलिंग एवरी डे, तो बच्चों के साथ टाइम बिताने का थोड़ा कम समय मिलता है। बट टेक्नोलॉजी ने फिर नजदीक ला दिया आप लोगों को। आप जहां भी ट्रैवल कर रहे हो, यू कैन आस्क द चाइल्ड व्हाट ही और शी इज डूइंग। एब्सोल्युटली सर, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है एजुकेशन में, दे कम फॉरवर्ड विद द सॉल्यूशन आल्सो। So this is good sign of society evolving to the next level. Right, brilliant. Thank you so much for that answer. Now coming to my last question for the day, sir. पहले एक बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जीते थे हम, लेकिन किसी ने काफ़ी अच्छा कहा है कि 21st century is a century of collaboration and not competition. इनफैक्ट मैंने ये पैंडमिक के वक्त देखा सर, इनफैक्ट यू वर अ स्पीकर ऑन मोस्ट ऑफ द टॉप एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स ऑफ कंट्रीज, जहाँ पर आप इस बात को एडवोकेट करते हैं कि हमें एज अ फ्रेटर्निटी एक साथ आना चाहिए और बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए काम करना चाहिए। सो कोलैबोरेशन कितना इंपॉर्टेंट होगा आगे जाकर सर? व्हाट डू यू फील ऑन दैट? Brijesh, I strongly believe, not because of these experience of these 2 years. मैं शुरू से बहुत strongly believe करता हूँ कि जब तक हम सेम फ्रेटर्निटी के लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं बैठेंगे, नॉलेज थॉट शेयर्स नहीं करेंगे, तब तक कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। Absolutely. है ना, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, आपकी तरह और भी कुछ कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं।
कंपटीशन होना एक अलग बात है जी। वी ऑलवेज कॉम्पीट विद ईच अदर। राइट। मेरा स्कूल जहाँ पर है वहाँ पर साथ में किसी दूसरे बैंड का भी स्कूल जी, होगा, जी, जी। तो दे आर वर्किंग ऑन देयर सिस्टम, आई एम वर्किंग ऑन माई सिस्टम। लेकिन साथ में हम जब तक साथ नहीं आएंगे, और अब क्या सोसाइटी के लिए होना चाहिए जी। क्या बच्चों के लिए होना चाहिए, एजुकेशन लेवल कहाँ पहुंचना चाहिए, अब जी। प्री स्कूल एजुकेशन की डेफिनेशन अगले 2 साल में 3 साल में कैसे बदलनी चाहिए जी। बच्चों के लिए, कौन सी टेक्नोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। Absolutely. तो ये कोलाब्रेशन टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो हैं उनके लेवल पर भी होनी चाहिए, और स्कूल अथॉरिटीज जो हैं जी। उनके लेवल पर भी होने चाहिए। Right. और जब कोलाब्रेशन की बात कर रहे हैं तो मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा इसमें ब्रजेश, कि कोलाब्रेशन खाली अपने बेनिफिट्स के लिए नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट्स के लिए नहीं होना चाहिए। कोलाब्रेशन वो जो लोएस्ट ऑफ द लोअर, बिल्कुल जो नीचे तबके के बच्चे हैं जी। जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी एजुकेशन, उनके लिए भी होना चाहिए। तो वी शुड सीरियसली रिकमेंड एवरी स्कूल पीपल कि वो अपने स्कूल में कुछ ऐसे बच्चों को, चाहे वो अलग सेक्शन बनाएं, चाहे वो शाम की शिफ्ट रखें, अलग शिफ्ट बनाएं, कि उन बच्चों को भी अलाउ करें आने के लिए। और क्योंकि अभी ये इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, बिग पार्ट ऑफ द एनईपी सर, इंक्लूजन एंड इक्विटी के ऊपर एनईपी पे ही बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि एनईपी ये कहती है कि हमें उन स्कूलों के साथ भी कोलैबोरेट करना चाहिए जिनके पास ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमें उन सोसाइटी के बच्चों को भी लेना चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ब्यूटीफुल थॉट। तो आई रियली बिलीव एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड, और मेरे स्कूल्स में तो ये होता है जी, बाकी ये एनईपी से पहले से होता है। जी जी, दैट्स अ ब्रिलियंट प्रैक्टिस सर। इनफैक्ट वन थिंग दैट आई लव्ड इज बेसिकली एज सर वाज सेइंग कि हम इक्विटी इंक्लूजन की बात करते हैं, दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू गो अहेड एंड एग्जीक्यूट दैट and implement that, ताकि हमें भी वो satisfaction मिले of addressing the socio-economic divide of this country, because इस देश में socio-economic divide बहुत बड़ी है, दूसरी एक digital divide बहुत बड़ी है सर, जो हमने पैंडेमिक में देखा। किसी के पास टॉप से टॉप डिवाइसेस हैं, किसी बच्चे को श्योर नहीं है कि मुझे दोपहर का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके हाथ में मैं अगर फिजिक्स टेक्स्ट बुक दूं तो वो किस काम की। सो दैट आई थिंक विद कोलैबोरेशन सच प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड, कि भी मैं फैसिलिटीज आपको देता हूँ, एजुकेशन कंटिन्यू कीजिए। ब्रिलियंट। सो एज दे से स्पेंडिंग 1 hour with a wise man is much better than reading thousands of books, and believe me, I experienced that today. In last few minutes Rathore sir has opened our minds, एंड जिसको एक कहते हैं ना कि भाई हमारे हाथ में एक चाय का कप हो, उसके अंदर शक्कर डालिए, लेकिन जब तक उसे स्टर नहीं करेंगे हमें वो स्वाद नहीं आएगा। एंड आई थिंक राठौर सर हैज डन दैट जॉब ऑफ पुटिंग दैट शुगर परफेक्टली टुडे। नाउ इट इज अपॉन अस टू स्टर दैट कप एंड मेक श्योर दैट द स्वीटनेस रीचेस ऑल ऑफ अस। Once again, on behalf of Singhania Quest Plus, I would love to thank Rathore sir for taking out time and visiting our studios. Sir, it was wonderful listening to you, and I'm sure it is going to be a great learning experience for all our audiences. Thank you so much for taking out time and being here, sir. Thank you so much, Brijesh.